Hello friends, in this series of videos on basic hydraulics, today the topic is pressure gauge. Pressure gauge is an important tool and to check the performance or check the health of the system, you need to have a pressure gauge to check the pressure in the system. And as you know, the pressure is responsible for the force because F is equal to P into A, force is generating in the system. So it's an important factor. And you should know how much pressure is generating in the system, and if it is not working perfectly, the first and foremost what you do, you check the system pressures. Okay, and the common tool for this is normal pressure gauge, and today I'm going to explain you about the design and the working principle of the gauge. So in this screen, what you can see, there is a dial with a pointer, which is normally what you normally see in all the machines. Okay, on our hydraulic machines, if you're checking the pressure, this kind of gauges you can see. Okay, so if you see the internal design, there is basically a tube which is called Bourdon tube. Okay, which has a link connected with a gear called sector, and it is driving a pinion, and with pinions a pointer is connected. Okay, so depending on the pressure rating, the hardness of the tube basically is designed so that it gives the correct measurement. Okay, and when you put pressure from one end, this end that where the arrow is given, this tube expands. Okay, and because of the link is connected with it, sector moves, the sector in turn move the pinion, and you get with the pointer you get the pressure gauge reading. Okay, so to get the correct pressure reading, it has to be calibrated regularly, right? So normally the calibration period for these type of gauges is normally 1 year. Okay, so you should calibrate these gauges in regular interval so that whatever readings you are getting are correct, and it is important for you to check the health of the system. You should always have a proper gauge which gives you the correct reading. Okay, so thank you, hope you like it. Now in Hindi, आप हम हिंदी में बताते हैं। तो आज इस वीडियो की सीरीज में जो बेसिक हाइड्रोलिक्स पे हमने आप लोगों को रोज मैं एक वीडियो देता हूं, उस सीरीज में आज मैं बात करने वाला हूं प्रेशर गेज के ऊपर। सबसे कॉमन जो गेज होता है वो जिसको आप कहते हैं ना, कुछ लोग घड़ी भी कहते हैं, प्रेशर घड़ी। ठीक है, तो उसमें एक डायल होता है जिसके ऊपर आपका ये दिया होता है कि ये PSI में या kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में उसका रीडिंग्स दी होती हैं। ठीक है, एंड एक पॉइंटर होता है जो बताता है कि जब आप प्रेशर यहाँ से एक ट्यूब के थ्रू इसको कनेक्ट करते हो तो ये बताता है कितना प्रेशर सिस्टम में जनरेट हुआ है। ठीक है, इसकी जो इंटरनल डिजाइन होती है वो क्या होती है, एक बेसिकली एक ट्यूब होती है जो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, एंड इस ट्यूब की हार्डनेस या फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है कि आप किस तरह का, कितने बार का या कितने प्रेशर का गेज आप डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप प्रेशर इस जहां से ये एरो दिया हुआ इस पॉइंट से जब आप प्रेशर डालते हैं, सिस्टम में प्रेशर आता है, इस सिस्टम प्रेशर जनरेट होता है, तो जो प्रेशर जब इस ट्यूब में जाता है, ये ट्यूब एक्सपैंड होती है। जब एक ट्यूब एक्सपेंड होती है तो इसके साथ में ये लिंक कनेक्टेड है, और लिंक के साथ में एक गियर कनेक्टेड, इसको सेक्टर बोलते हैं। और ये सेक्टर जो है ये बेसिकली एक पिनियन को मूव करता है, और पिनियन जो कि कनेक्टेड है एक पॉइंटर से या एक सुई से, और वो सुई आपको दिखाती है कितना प्रेशर है सिस्टम में। ठीक है, सही रीडिंग के लिए इसको हम लोग कैलिब्रेट करते हैं, या फिर जो लैब्स होती हैं वो कैलिब्रेट करती हैं कि ये प्रॉपर रीडिंग दे। ठीक है, इसका कैलिब्रेशन टाइम नॉर्मली 1 साल का होता है। तो 1 साल में अगर आप ये यूज करें तो उसको कैलिब्रेट करना चाहिए किसी प्रॉपर लैब से, सो दैट जो रीडिंग्स आपको मिल रही है वो प्रॉपर मिले। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपका कोई सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है या सिस्टम में हाई प्रेशर बन रहा है और अगर ये गेज आपको प्रॉपर इंडिकेशन नहीं करता है तो आपका सारा जो ट्रबल शूटिंग है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि और प्रेशर जो है सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको नापने का जो यंत्र होना चाहिए वो प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो होप ये आपको थोड़ा सा समझ में आया कि कैसे ये प्रेशर दिखाता है और प्रेशर गेज किस तरीके से काम करता है। अगर आप लोगों को कुछ इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे बात कर सकते हैं, मेरे को लिंक में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा एक रेगुलर बेसिक हाइड्रोलिक का कोर्स चलता है, अगर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्स होता है, तो इसमें वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं, एंड फिर हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। थैंक यू वेरी मच।